السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینودر ولاگ. لیکن آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیش خدمت ہے، کیونکہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کریں گے 4 سال بعد. کیونکہ وہ بہت زیادہ چیزیں پیچھے چھوڑ گئے تھے جو کھانے والی رہ گئی تھیں، تو اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. آج ان کی آمدن ہے 6-7 بجے انہوں نے مینار پاکستان کے ٹاپ پر چڑھ کے خطاب کرنے ہیں اپنے جو ورکر آئے ہوں گے ان کے ساتھ، بریانی تقسیم کریں گے ادھر. آج پوچھتے ہیں کچھ لوگوں سے، بھائیوں سے، کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو کیا توقع ہے میاں صاحب سے؟ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. ان کو کہ کیا وہ کر سکتے ہیں کچھ؟ کیونکہ 4 سال بعد اگر واپس آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی وہ پلان بنا کر آئے ہوں گے جو اتنا لمبا عرصہ تھا جب واپس آئے. تو لیاقت بھائی سے پوچھیں. ہاں جی لیاقت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ تو ویسے بھی لاہور میں رہتے ہیں. آپ تو پھر نواز شریف کے وہ کہتے ہیں علاقے گڑھ میں سے آئے ہیں، نون لیگ کے گڑھ میں سے آئے ہیں. تو میاں صاحب آج آ رہے ہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آ کر وہ پاکستان کا جو قرضہ لیا ہے انہوں نے، یا پاکستان کو سدھار سکتے ہیں؟ سدھاریں گے جیسے پہلے سدھارے تھے. تو آپ جنت لینے کیوں نہیں گئے؟ مجھے ضرورت نہیں ایسی جنت کی. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میاں صاحب کے استقبال میں آئے گا تو وہ جنت کا حقدار ہوگا. لیکن کیا کہا میرے سے صحیح؟ تو آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جو ورکر جا رہے ہیں انہیں کہ جنت ملے گی؟ ہاں، جنت اتنی سستی ہو گئی کہ اب لوگوں کا کرپٹ لوگوں سے نہیں جنت تو وہ شیطان ہے، شیطانوں سے اب جنت ملے گی. نہیں، کیا لوگ کس لیے جا رہے ہیں کہ بریانی وغیرہ ہے؟ کیا لالچ کیا لوگوں کو؟ بس لوگوں کو ابھی تک شعور نہیں آیا. اتنا بھی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو ابھی شعور نہیں آیا کہ ہمارا پیسہ کھا کے 4 سال بیمار رہ کے بنا جو اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکا، اپنی بیوی بھی، اپنی والدہ کے بھی اور اپنی وائف کے بھی، دونوں کے نہیں پہنچ سکا، تو اب وہ عوام کے لیے کیا کرے گا؟ اصل وہ عوام کے لیے نہیں آ رہا، وہ اپنے کھانے پینے کے چکر میں آ رہے ہیں. کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں. عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. 4 سال میں ہے، کیا مسئلہ تھا 4 سال کے؟ لگتا ہے آپ کو کوئی اب ڈیل ہو گئی ہے؟ ظاہر سی بات ڈیل ہی ہوئی ہے، ایسے تھوڑی آتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں لیاقت پہ تو واقعی بھی لوگ رہتے ہیں. اب لاہور میں کوئی چینجنگ آ گئی ہے ویسے نون لیگ یا پی ٹی آئی میں؟ ہاں چینجنگ ہو جائے، چینجنگ آئی ہے. صرف نون لیگ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. عوام نہیں ان کے ساتھ پوسٹر ان کے لگے ہوئے ہیں. میں بھی عوام آج آئے گی جو جن کو ابھی تک شعور نہیں آیا بریانی کھانے. بریانی کے ڈبے نہیں بریانی نہیں ہے، ساتھ میں نے سنا رات کو ڈنر بھی بہت اچھا. وہ یہ کھانے کے چکر نہیں پوچھے گا وہاں. کیا کہہ سکتے ہیں، آپ آگے چلتے ہیں. لیاقت بھائی نے تو اپنا اوپینین دیا ہے ہمیں، تو یہ دکاندار ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا تو ڈیلی بیس پہ کام ہے. ویسے اس کا منہ بھی چوسنی چاہیے دکاندار کا. آپ جج نہ کیجیے گا، بس ہم ان سے سوال کریں گے اور انہوں نے ہمیں ہمارے کوشچن کا آنسر دینے. بس وہ ذرا فری ہو جائے. انہیں میں نے چوسنی کے منہ والا کہہ دیا تو انہوں نے واقعی منہ بنا لیا اور وہ پرے چلے گئے ہیں اپنے. تو جیسے باتیں تو ہم ان سے پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کس طرح؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں چلو چھوٹا افضل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ڈاکٹر صاحب. چلے ڈاکٹر صاحب کر دیں گے، سینسر کر دیں گے. میں تو سیریس ہوا. اچھا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر. سر. جیسا کہ میں آگے بھی لوگوں سے پوچھ کر آیا ہوں، ایک تب وہ کہہ لیں کہ ایک سروے کر رہے ہیں. اچھا اچھا نواز شریف صاحب آج پاکستان میں لینڈ کریں گے. جی سنا ہے کہ وہ لینڈ کر گئے ہیں. اچھا ہاں سنا ہے، وہ لینڈ تو کر گئے، ان کے وکلا جو تھے وہ بھی آ گئے. اچھا اچھا. مطلب 4 سال بعد آج نواز شریف آ رہے ہیں واپس. تو کیا توقع ہے آپ کو؟ کیا کر سکتے ہیں وہ آ کر واپس سے 4 سال بعد اگر آئیں؟ سر وہ آئے ہیں جو پہلے کر کے گئے وہی کریں گے جو پہلے کر کے چلے گئے تھے. اب بھی وہ آئے ہیں اپنی باری لینے. اچھا تو اپنی باری لیں گے اور اس کے بعد پھر چل جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کے لیے وہ اچھا فائدے مند ثابت ہوگی کہ یا پاکستان کے لیے اگر اچھا ثابت نہ بھی ہو تو اپنی قوم اور وہ اپنے جو ہے ان کی جو پارٹی ہے یا اپنے کاروبار ہے جو ان کا جو خاندان ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا. اچھا نہیں، جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے جو ایم این ایز ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کا استقبال کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جنت کی ٹکٹ اسے ملے گی. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مریم نواز کو شو کر رہے ہوں. اچھا نہیں اچھا اس وجہ سے چلے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا رانا ثناء اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ جی
जो नवाज शरीफ के लिए निकलेगा समझे वो उसे हज का सवाब मिलेगा। जी जी तो जैसे आज हमने दो सुन लिए, एक कह रहे जी जन्नत का टिकट और एक कहते हैं जी सवाब की नीयत से। जी जी तो मतलब जो अगर आप कह रहे हैं जैसे आपने कहा जी वो अपने लिए अपने घर को देखेंगे, जी बिल्कुल। अब जो उनके वर्कर हैं जैसे ये भाई हैं जो उनके बारे में निकले हुए हैं, वो कह रहे जी नवाज शरीफ ही हमारा जी। करता धरता है, ऐसी शेर शेर मतलब आप क्या तवक्को है आपको? मेरे घर के 10 वोट है जी, मैं शेर को दूंगा। क्या कैसे देंगे आप? मतलब आपको हमारे लिए शेर है। अभी तक भी आपको पता नहीं चला? नहीं, शेर ही जो मर्जी महंगाई करे, सस्ती करे, शेर ही। नहीं आपको क्या फायदा नजर आ रहा है अगर वो 4 साल बाद? फायदा नजर आ रहा है। नहीं चीज़ देखो ना 4 साल में आपका क्या हाल हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं अगर 1 साल और ये रुक गए? खान था इसलिए मेरा हाल ये हुआ है। 16 माह आप पटवारी हैं जी, पक्के पटवारी हैं। ये पटवारी इनका इससे भी बुरा हाल हो जाए लेकिन ये पटवारी रहेंगे। नहीं, आप देखे ना इनकी क्या हालत कर दी। मैं सर जिम्मेदार बंदा हूँ, मैंने कहा मैं अपना एक रकबा बेच के मैं शेर का वो इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा मेरे पास 5 रुपए जगह है, वही ठीक है, एक मुरब्बा 5 मुरब्बे, एक मुरब्बा बेच के मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहाँ। तो फिर आप अच्छा 5 मुरब्बों वाले की ये हालत शेर ने कर दी है। मैं माल डंगर रखा हुआ मैंने। अच्छा माल डंगर माल है मेरे पास, मैं उनके चारा डालता हूँ उनको। जानवरों के साथ खुद भी जानवर होना पड़ता है जी, जहरी बात। लड़ाते रहे हैं ना। जी। इसको रीच के साथ लड़ाते हैं। नहीं मैं देख मैं मुझे तरस आ रहा है इन जैसे लोगों पर कि 16 माह के अंदर उन्होंने आपकी ये हालत कर दी है और आप अभी ये वाकई पक्के पटवारी हैं। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इन्हें हिदायत दें, तो आगे हम चलते हैं, आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और बेल आइकन के बटन को दबा दें। ले जी हम उधर से अब आ गए इधर ग्राउंड में, तो उधर पूछते हैं। मेहर भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। हाँ जी मेहर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, करम है। आपसे कुछ सवालात कर सकते हैं जी जी बिल्कुल। आज, क्योंकि हमारे बहुत ही अजीम लीडर, अजीम, हाँ वो अजीम ही कहा जाएगा, बहुत ही अच्छा बहुत बड़े पाकिस्तान के थीफ और बहुत ये तो बड़े। कह सकते हैं आप ठीक। अच्छा थीफ का मतलब आप कुछ और ना लीजिएगा, और भी बहुत मतलब निकाल सकते हैं। और बहुत बड़े बैगर्स आ रहे हैं, तो 4 साल बाद उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान में। तो क्या कहना चाहेंगे आप नहीं गए हैं जन्नत लेने? जन्नत वैसे एक और बात है, जन्नत से याद आया कि मैं तो कल मौलवियों को कर रहा था, मैं कहा मौलवी हमें ऐसी ही जन्नत के पीछे लगा रखा, जन्नत तो यहाँ मिल रही है। हाँ वाकई, वो भी सस्ते में, एक चक्कर लगाओ तो चक्कर लगाओ और जन्नत पाओ यार, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। वैसे टिकट बट रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ। हमारे बहुत अहले इल्म लोग हैं जो जन्नत लेने के लिए पहुंच भी गए हैं वहाँ पर, और खुद कहते थे इससे बड़ा कोई हमारे लिए हज का सवाब मिलेगा। ऐसे ही वहाँ जाएंगे तो हमें हज का सवाब बेशक। इस और अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जो नवाज शरीफ के लिए निकलेगा ना वो हज का सवाब मिलेगा उसे। तो मैं तो इनकी सोच पे हैरान हूँ हमारे लोगों की, कि इन्हें पता नहीं शऊर कब आएगा। लोग पता नहीं कौन दूसरी कंट्रीज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और हमारे पाकिस्तानी अभी तक सिर्फ मीनारे पाकिस्तान तक ही महदूद है। और एक और भी तो चीज़ है ना। जी जी। और बिरयानी के डब्बे हैं वो तो और फिर नहीं फिर कौरमा भी तो है ना, और साथ कौरमा भी है। हाँ नहीं बिरयानी का डब्बा है, साथ 125 है और जन्नत का टिकट है। वो कौरमा भी रात को भी खाना भी है ना, बड़ा जबरदस्त। वो तो है। सुनने का है करोड़ों रुपया तो खाने पे लगा दिए इन्होंने। 125 पे बैठ के कौरमे का डब्बा और जन्नत की टिकट, एक हाथ में उसका कौरमे का और बिरयानी का डब्बा होगा, दूसरे हाथ में उनकी जन्नत की टिकट होगी। वो मरियम नवाज उस रात से वो 125 से और मरियम नवाज किधर होंगी? मरियम नवाज के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसी वो खुद हैं माशाल्लाह। और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह। अच्छा नहीं, आप ये बताएं कि 4 साल बाद वो वापिस आ रहे हैं, जी जी, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए कोई फायदेमंद साबित होंगे या? पाकिस्तान फायदेमंद तो तब साबित होगा ना जब वज़ीर आज़म बनेंगे। उसे उन्हें बनने कौन देगा? वज़ीर आज़म वो बने हुए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। वो तो चौथे पुलाव है ना उनकी जो पका रहे हैं वो। देखिए ना, मैं बताता हूँ आपको, जी जी। इस टाइम जो है ना वो अवाम की वजह से तो नहीं वज़ीर आज़म बन सकते, पर ये वो मैं लिख के दे सकता हूँ। एक सर्वे के मुताबिक अगर हम सर्वे करें तो इमरान खान है, बिल्कुल। पर इस टाइम जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा अदलिया, सब कुछ जो भी है ना, जी जी, वो मियां लेकिन मोहम्मद मैं नवाज शरीफ को ऐसी क्राइटेरिया में इनको वज़ीर आज़म नहीं मानता। वज़ीर आज़म वो होता है, प्रेसिडेंट वो होता है जो अपने मेरिट पे है। हम इसे वज़ीर आज़म कैसे मान लें? जब हमने इसे वोट ही ना दिया हो तो हम इसे वज़ीर आज़म कैसे एक्सेप्ट कर लें? अब आपके वोट देने या ना देने से तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। वो जिधर बूटो, वो कहते हैं ना जिधर बूटो वालों ने इशारा करना है, जी जी,
तो कामयाब तो उसी नहीं होना है। हाँ, बूट की तो खैर बहुत अहमियत है। बूट वो कह रहे थे ना, बूट सुंघाया तो वापस आया। हाँ जी। तो बूट सुंघाने से ज्यादा कि उससे तो जो इलाज करवाता रहा 4 साल से, वो तो उसे पता नहीं चला, बूट सुंघाया गया है तो वापस आ रहा है। पॉलिश भी Otherwise बहुत, उसने तो अभी आना ही नहीं था। इनकी पॉलिश और ये चेरी ब्लॉसम कहते हैं जी, जी, इन्हें, बिल्कुल। पॉलिश क्योंकि बहुत अच्छा करते बहुत हैं। अच्छा पॉलिश बहुत अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह। एक हमारे मांग बहुत अच्छे, उनके दूसरे भाई मांगते बहुत अच्छा है, एक मांगने के शौकीन है और एक पॉलिश करने के। आपको लगता है अगर मियाँ साहब इधर आ गए, ये जो बच्चे खेल रहे जी, हैं, जी। इनका कोई मुस्तकबिल बनेगा? नहीं, ये तो वैसे ही तबाह हुआ है इनका मुस्तकबिल तो। क्या नजर आ रहा है कि इनका मुस्तकबिल होता तो स्कूल होते आज। देखो बाहर बैठे हैं बेचारे, खेल रहे हैं। इस टाइम ये एकेडमी का टाइम होता है। हम इस टाइम जब हम पढ़ते थे, हम इस टाइम एकेडमी में होते थे। मतलब आप मतलब इस टाइम आप कह रहे हैं कि अगर मियाँ साहब आते हैं जी, तो बच्चों का मुस्तकबिल तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे बच्चे और उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए क्या हो सकता है और- कि हमारे जो हमारा फ्यूचर जो हमें ब्राइट करना चाहते हैं वही एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए जुल्म और एक क्या और हो बात कि आपने कभी देखा होगा कि टीचर के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया हो। हमारे पुलिस बनाने वाले, जिन्होंने उन्हें तालीम दी, जिन्होंने उन्हें मतलब शऊर दिया पुलिस वालों को, वही मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे होगी, उन्होंने उस्ताद पे हाथ उठाया। क्या उस्ताद हमारे बाप की तरह होते हैं, हमारे रूहानी बाप हैं, हमें इल्म सिखाया उन्होंने, हम उन पे मतलब पहले भी बहुत इज्जत कर रहे थे। आज मैं पहले से ज़्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता हूँ देखो, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमने मेहनत की। उस्ताद वो है जो एक बच्चे को, एक नालायक बच्चे को लेकर ना उसे एक बहुत बड़ा एक इंसान बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसे। और वो जब बच्चा फिर पुलिस वाला बन जाता है, फिर उस्ताद समझते हैं कि ये मेरी इज्जत करेगा। फिर एक दिन आता है कि उसी उस्ताद के ऊपर वो लाठीचार्ज कर रहे होते हैं। पुलिस तो और खैर राइट, पुलिस तो है ही खैर हमारी आजकल। पुलिस पाकिस्तान है क्या पाकिस्तान की? वो तो विषय ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जिथे लाओ उन्होंने उत्थे लग जाते हैं, उन्होंने काम नहीं किया जा रहे हैं। उन्हें तो जो ऑर्डर मिलेंगे उन्होंने वो कन्वे करना है। बच्चा आके खड़ा तो मैंने कहा यार देख लो। तो मतलब आप बच्चे है ना यार, इन्हें भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब पाकिस्तान, हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह पाक जो पटवारी हैं इनके ज़हन खोले, हिदायत दे इनको ज़हन खुले, इनको हिदायत मिले। इनको ये अपने फ्यूचर के बारे में इन्होंने अपना जो मुस्तकबिल है ना सिर्फ और सिर्फ एक बिरयानी के डिब्बे भाई, अभी पे मैं देख रहा था इन्हिसार किया हुआ है। थोड़ी देर पहले कि हमारे वो ये आ रहे हैं, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। अच्छा, खर्चा तो उन्होंने कर दिया है, अब ये पूरा कहाँ से किया जाएगा? ये हम लोगों में से किया जाएगा ना। मैं भी ये बात सोच रहा था, मैं कहा यार इतना जो खर्चा हो रहा है ये पूरा तो हमने ही करना है, हमने इनको पे करना है, बाद में हम पे टैक्स लगने हैं, हम पे महंगाई का बर्डन हमने फेस करना है। महंगाई देख ये उन्होंने तो खा लिया है। और अपने जेट लेके आए हैं वो, अब वो वहाँ से पहले कमाया, वहाँ जाके खाया, अब वो पैसे खत्म हो गए हैं, दोबारा आ गए हैं, कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा खासा कलेक्ट करेंगे, फिर उन्होंने वहीं चले जाना है। वो एक और बात है, पता नहीं ये पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है, थोड़ी बात की दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है। ये है और ही कब्रिस्तान। पाकिस्तान वो कब्रिस्तान है इन लोगों के लिए जिसमें से इनके लिए हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। और आते हैं ये कब्रों को खोदते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं और पैसा लेके बाहर वाले मुल्क में जाते हैं, उधर अयाशियाँ करते हैं, इनकी औलादें याशी करती हैं, इनके बच्चे बच्चियाँ सब कुछ याशियाँ करते हैं। और गरीब हमारे जो बच्चे बच्चियाँ वो सड़कों पे रोडों पे भीख मांग रहे हैं। इस टाइम आप देखें पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने कर दिया है, बहुत मुश्किल है। और गरीब बंदा इस टाइम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, इतना मुश्किल वक्त आ गया कि वो हर कोई मांगने पे मजबूर हो गया। तो खुदारा आप लोग समझें, अपने हक के लिए निकलें, आप अपने लिए निकलें। ये मुल्क किसी का नहीं है, ये मुल्क हमारे अबू जात का है। वो आए इधर, उन्होंने मेहनतें की हैं, तब ये मुल्क बना था, तब ये पाकिस्तान आया था मार्ज़ वजूद में। पाकिस्तान का मतलब ऐसे नहीं कहते, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें निकलना पड़ेगा। जब तक हम घरों में बैठते रहेंगे, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कभी भी पाकिस्तान कौम आगे नहीं जा सकती। तो मैं आप सब, पाकिस्तान की कौम आगे जा ही नहीं सकती। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की कौम जाएगी, क्योंकि हमें शऊर खत्म हो गया है और हम गुलामी की तरफ चल पड़े हैं। गुलामी पे लग जाए, उनके माइंड वैसे ही खत्म हो जाते हैं। वो तो कहते हैं बस हमें बाहर से मिलेगा, और उन्हें ये नहीं पता कि हम जितना कर्ज लेते हैं उनसे हमें डबल वापस करना होता है, और देना हमने ऐसे ही है। हम तो हमारा बच्चा पैदा होता है तो वो गुलाम पैदा होता है, हमारा बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जा ही होता है, क्योंकि हमारा जो उस पे बच्चा पैदा होता है उसमें लाखों रुपए का कर्ज कहाँ से आ गया? हमने तो 1 रुपया नहीं लिया इस हुकूमत से या फिर इस मुल्क से। हमारे तो टैक्सेस जाते हैं, हमारे तो हर चीज़ जाती है। मेरा ऐसी ना किसी नमली के खातून से थोड़ी सी बहस होगी, तो मैंने कहा यार वो नवाज शरीफ ने कितना पैसा खाया, उसने क्या किया? कहता हाँ वो खाता था तो लगाता भी था।
यार मैंने कहा यार तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। मैं कहा तुम अच्छा मुझे तुमने 50 लाख रुपए दो मुझे, मैं तुम्हें उस 50 लाख में से मैं तुम्हें 20 लाख रुपए का काम करवा देता हूँ, 30 लाख में खा जाता हूँ, तो मैं फिर उसका मतलब ठीक हुआ ना, मैंने खा भी लिया, आपका काम भी करवा दिया, और आप फिर भी मुझे ठीक ही कहोगे ना, उससे मुझे गलत तो नहीं कहोगे आप? नहीं वो तो फिर गलत होगा। मैं कहा गलत, फिर वो गलत है। और उसने मैं कहा वो लिया बाहर से पैसा, खाया भी और लगाया भी थोड़ा सा, मैं कहा उसने 100% लेके उसमें 10 से 20% अगर उसने लगा दिया तो वो क्या हमारे लिए क्या है? और पे हम नहीं करना है, वो हमने डबल ट्रिपल की सूरत में पे करना है। उन्हें ये समझ नहीं आती, उनके जहन इतने फ्लूज हो चुके हैं, इतने आज ही लियाकत भाई जरा, लियाकत भाई आए हैं लाहौर से, तो लियाकत भाई भी कुछ आगे बहुत अच्छा मतलब मियाँ साहब के बारे में वो मियाँ साहब के बारे में कह रहे थे। तो ये उमर भाई इन्होंने बहुत अच्छा हमें, हमारी कौम तो है सोई हुई, अगर किसी कौम सोई होकर जगाना हो और आपको कहा जाए कि एक लाइन, तो आप क्या वो कहेंगे कि जिससे कौम की जरा? हमारी कौम देखें जा ही गई है, एक बिरयानी के डिब्बे में पहुंच गए मीनारे पाकिस्तान। अभी मैंने भी बताई सामा भाई ने बात ये बात मैंने नहीं पहुंच बताई। गई है, हमारी वहाँ पहुंच गए, एक बिरयानी के डिब्बे में पहुंच गई। देखिए अब इससे क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अवाम के बारे में? अवाम के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी अवाम अब नहीं समझ रही। तो जहालत है ना, जहालत ये हमारे बच्चे पैदा होंगे तो वो होंगे गुलाम और वो कर देंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे उनके मुंह में सोने का चमचा और पैसे हमारे। पैदा होंगे जब की बात है, अभी जो बच्चा पैदा होना वो ऑलरेडी कर्जई है। वही तो कर्जई है, लंगड़ा लूला ही आएगा, उनका जो आएगा सोने का चम्मच उसके मुंह में होगा। पैसे किसके होंगे? हमारे होंगे। हमारे पैसे से सब कुछ हो रहा है, ये जो सब कुछ चल रहा है, बिरयानी चल रही है, कोरमा चल रहा है, जो भी होना है, हर चीज आज का जो डिनर है ये हमारी तरफ से ही है। देखे ना, आज तो वो लगा रहे हैं, निकाला उन्होंने हमें से, हमारे जो टैक्सीज होंगे हर चीज ये वो, क्योंकि आज सुनने में आया कि करोड़ों रुपया उन्होंने लगाना है और हर एमएनए हर एमपी ने ना अपना अपना उसमें हिस्सा देना है। अब एक मिसाल है, उमर भाई उनके एमपी हैं, अगर ये 5 लाख रुपया देंगे ना तो इन्होंने 5 लाख नहीं वापस लेना, इन्होंने फिर करोड़ों रुपया वापस लेना है। तो अब आप सोच लें कि अगर क्या आपने एक अपने ज़मीर को कौरमे के डब्बे या बिरयानी के डब्बे पे आपने बेचना है या उसे लेकर जाना है, या आप अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, तो आप निकलें अपने घरों से अपने मुल्क के लिए। ये पाकिस्तान हमारा और आप सबका मुल्क है। ये हमारे बहुत आज जब इधर आए थे इंडिया से तो उन्होंने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी थी, और आज हम एक बिरयानी के डब्बे पे कुर्बान होकर मीनारे पाकिस्तान पहुँच गए। हमें इतनी नहीं आ रही कि वो बंदा 4 साल के बाद आया जो बीमार था, जो अरब इलाकों में कंट्रीज में जा सकता था, बस पाकिस्तान नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? जी वो बीमार है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि अपने मुल्क के लिए सिंसियर हों, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप निकलें और अपनी अपनी जो राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मियाँ साहब मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, या जो भी आपके ज़हन में आता है मियाँ साहब को पहला मियाँ साहब का नाम सुनते ही अगर जो भी आपके ज़हन में पहला वर्ड आता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी कहना है। और हमारे चैनल को ज़रा जी यार मैं सिर्फ ना अपनी आवाम को सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा कि जो शख्स अपनी वालदा और अपनी बीवी के मरने पे नहीं ना आया, ठीक है, तो वो अवाम के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। लियाकत मैंने बहुत अच्छा कह दिया। मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस ब्लॉग को करता हूँ इधर एंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाएं, हमें सपोर्ट करते रहें। ऐसे हम आपके लिए वीडियोस अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में।